and good evening, ladies and gentlemen. I'm Ravindra Madia from International Creative Arts Center, which is better known as ICAC, an organization working for the development of art and artists in the country. I welcome you all and our highly respectable Sri Ajay Chaudhary ji. We can call him an amateur, a novice, a maverick, or a purist. Ajay Chaudhary sir has etched himself onto the canvas of intricate world of abstract art. He is considered as a gifted abstractionist. Chaudhary sir has showcased his creations in top galleries in the world and has won accolades from art connoisseurs. Honorable M.F. Hussain ji has described Chaudhary sir's painting as living art form. That's a great thing. A Stroke with Square, a 22-minute documentary is made on abstract paintings of Ajay Chaudhary. This film was shown at Morocco International Film Festival, Kerala Film Festival, Calcutta Film Festival, and so many other places. A sound installation, Crusade of Emotions, was made by a Bollywood music director inspired by the artworks of Ajay Chaudhary sir. His paintings are essentially a form of rebellion. The key idea behind his paintings is to use abstraction as a means to comment on reality by process of embodying childlike freedom, spontaneity, to break the conventional inhibitants of a trained mind to project an uncharted abstract landscape of the abstruse. Today, we are here to discuss a different subject: relevance of art in day-to-day life. How does art impact us as human beings, as art lovers, or as an ordinary layman? We will discuss the relevance of art and artists in day-to-day life. So, Ajay sir, I'll today ask you or request you to enlighten us. What is creativity? What is art? And how do we see it? Thank you, sir, for introducing me. एक तो चीज अपने सभी को थोड़ा गहराई में जाना पड़ेगा कि जो भी चीज हम लोग अभी यूज कर रहे हैं, whatever thing we are using must have been initially, when that thing doesn't existed, somebody must have imagined it and must have drawn it. It may be chair, it may be anything, whatever there in our planet today. All human things made. Somebody must have imagined it. और उसके बाद उसको execute किया होगा. So from that perspective, everything is a work of art in itself. दूसरे perspective से work of art is like food for the soul. Like routine जो life चल रही है, routine चीज सभी चीज चल रही है, job,
our work, our survival on the planet, our day-to-day problems, there is something which gives us nourishment, which gives us containment, which make us more complete, which we can call this as aesthetics, or we can call this by any name, but something which comfort us and whose lifetime, whose survival time, whose is beyond much more than 5 times our lifetime, like any work of art or even any creativity, उसकी जो लाइफ टाइम है, उसकी रिलेवेंस है, it is a very very long time relevance, like 300 year, 400 year. It is a work of art which allow us to breathe. सर हाँ सर, ये few of my curator friends told me that there is lot of scope for developing more of abstraction, and it's like especially for my lovely young artists, especially उनके लिए खास ये देंगे कि जरूर वो बहुत एक्सपेरिमेंट करें, बहुत स्कोप है, बहुत नई नई कला बनाने की स्कोप है, और इट्स लाइक ए ग्रीन फील्ड, और ऐसी कुछ कला भारत में भी बनाए एब्स्ट्रैक्शन का, इंस्टॉलेशन का, जिसको कि थर्ड जनरेशन बोल सके, इसमें इतनी कैपेसिटी हो कि वो वर्ल्ड उसको रिकॉग्नाइज करे कि इट इज ए एक्सटेंशन ऑफ सेकंड जनरेशन, इट इज मोर एडवांस देन व्हाट सो कॉल्ड वेस्टर्न मास्टर्स हैव मेड। इसको इस कॉन्टेक्स्ट में भी सर देखना थोड़ा अपने स्पेशली इंडियन पेंटर्स के लिए मेरे को ऐसा लगता है कि जो भारतीय संस्कृति और भारतीय फिलॉसफी है, और जो ऋषि मुनि लोग जो रिसर्च करके गए हैं सभी चीज तत्व के ज्ञान के बारे में और भी दुनिया के बारे में, महर्षि पतंजलि और भी कबीर साहब, और भी वो इतनी एडवांस है कि कलाकार उस बात को समझे, उसको अपने में उतारे और फिर कला बनाए, तो कोई डाउट नहीं है कि ये दुनिया उसको नहीं मानने से इनकार करे कि ये एडवांस नहीं है ऐसा। क्योंकि इंडियन फिलॉसफी और इंडियन जो बातें हैं, ओल्ड बातें हैं, वो बहुत ऊंचे लेवल की और बहुत सुपीरियर है। सो young all artists, young friends, they can read more, और बहुत अच्छी अच्छी कला और बहुत ऊंची बातें उसमें डाल के बनाना बहुत संभव है सर। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अब आप जो इंडिया के एब्स्ट्रैक्ट आर्टिस्ट रहे हैं, खास करके रजा साहब, वीएस गायतोंडे, राम कुमार जी, इनकी कला के बारे में, इनके बारे में आपका क्या कहना है? एक तो सर ये इतना मैच्योर काम और इतनी ये चीज इनके बारे में ऐसे बोलना तो ऐसे सूर्य को दीपक दिखाने जैसा होगा सर। फिर भी अपनी छोटी अपनी बुद्धि से, बाल बुद्धि से अगर हम बोलने एक्सप्लेन करने का थोड़ा कोशिश करें, तो जो एब्स्ट्रैक्शन का शुरुआत है गायतोंडे साहब जैसा काम किए हैं, और रजा साहब का काम, राम कुमार साहब का काम, और भी कंटेम्पररी अपने जो हम उम्र के लोग हैं, कोल्टे साहब का काम, ये काम एक दिशा भी दिखाती है कि आगे किस दिशा में जाना है। एक तो चीज है सर कि जो कला में और उसमें भी खास करके एब्स्ट्रैक्शन में उसकी असेसमेंट और उसकी परफेक्ट जजमेंट या उसकी कॉन्टेक्स्ट में उसकी इवैल्यूएशन एक जनरेशन नहीं कर सकता। इट टेक्स मिनिमम 100 ईयर्स, 100 साल, 200 साल उसकी मैच्योरिटी लेने में निकल जाएगी सर। क्योंकि एक
उनकी वो जो कला है इट्स टाइमलेस एंड एजलेस, उसको परफेक्ट देखने के लिए भी 100 साल चाहिए। इसलिए अभी उनकी असेसमेंट तुरंत में करना ये बहुत बाल बुद्धि जैसी बात होगी, क्योंकि कोई भी चीज का एक्चुअल असेसमेंट स्पेशली इसलिए इंटरेस्टिंग भी है, इसलिए ये फैसिनेट करता है आर्ट वर्ल्ड सर, कि अभी जिसको हम लोग मान रहे हैं कि ये कोई भी यंग पेंटर ही इज नॉट सो सक्सेसफुल, लेकिन उसके क्रिएशन के 100 साल के बाद हम लोग को डिस्कवर हुआ कि नो ही वाज अ मास्टर, नो ही वाज मच अहेड ऑफ ऑल who have visited this planet. So अभी तो सभी को काम ही करना है, और जितना क्रिएटिव आउटपुट निकाले और ईश्वर के आशीर्वाद से जितना काम कर जाए अपने लाइफ टाइम में, तो सर उसकी असेसमेंट करना तो मेरे लगता है कि इम्पॉसिबल है। क्योंकि कोई भी जैसे कोई भी वर्ल्ड के मास्टर के लीजिए काम, उसकी एक तो वो आर्टिस्ट के सर लाइफ के हाजिरी में उसकी कला दिखती नहीं है। पहली बात तो ये, जब आर्टिस्ट जिंदा है तो उसकी कला सर देख नहीं पाते, क्योंकि उसके ऊपर एक लेयर रहता है, उसकी हाजिरी से उसकी ऑरा से वो परफेक्ट नहीं दिखती, तो उसकी तो इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस। लेकिन तो इसलिए ये इंटरेस्टिंग है, और स्पेशली एब्स्ट्रैक्शन के फील्ड में तो बहुत है सभी लोग, और दूसरे भी सभी जगह सभी फील्ड में। सो बहुत ही उत्साह मिलता है जब इंडियन एब्स्ट्रैक्शनिस्ट, इंडियन आर्टिस्ट वर्ल्ड स्टेज पे इतना अच्छा रिकॉग्निशन सभी को मिल रही है। अभी इंटरनेट के समय में सर ऑल थिंग इज ट्रांसपेरेंट, योर आइडिया हैज टू बी ब्रिलियंट। उसको इफ आइडिया इज ब्रिलियंट, इफ द कॉन्सेप्ट इज ब्रिलियंट, उसकी सभी लोग, देयर इज नो गैप, इट्स ए हाईली डेमोक्रेटाइजिंग stage we are going to digital age, there is no discrepancy. So इसलिए it's very fascinating. A young artist living in a village can create something really powerful and world will appreciate. Yes. So इसीलिए सभी को काम करना है, और बहुत काम करें, और बहुत खुश होकर काम करें, और ये बहुत जरूरी है। उसको बहुत शॉर्ट टर्म में ऐसे देख के कि आज का आज सक्सेस मिला कि नहीं मिला, ये तो बाद की जनरेशन उसको अप्रिशिएट करेगी। अभी उसको करना, अभी तो समझिए वो बना ही है और जी रहा है वो। सो ओके, अब आज से मैं सोचता हूँ करीब 50 साल बाद, आफ्टर 50 years, इंडियन आर्ट और वर्ल्ड आर्ट क्या पोजीशन रहेगी दोनों की? आज आप 2-4 नाम हिंदुस्तान के आर्टिस्ट के ले सकते हैं, बट ओवरऑल इंडिया की या इंडियन आर्टिस्ट की वर्ल्ड ओवर प्रेजेंस बहुत 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 छोटी है। अगले 50 साल में आप हिंदुस्तान की आर्ट को या हिंदुस्तान के आर्टिस्ट को कहां देखते हैं वर्ल्ड आर्ट के कंपैरिजन में? एक तो सर अगले 30-40 years में स्पेशली साउथ एशिया, लाइक इंक्लूडिंग इंडिया, वी आर अ हॉट स्पॉट फॉर द वर्ल्ड कैपिटल टू फ्लो। ऑल वर्ल्ड कैपिटल, अभी आप रिसेंट में देखे भी होंगे, ऑल टॉप business people, all top business leaders, they are shifting to Singapore, Hong Kong, to India, to Mumbai, because अपने यहाँ growth rate is 6 to 7%, and growth rate in US, EU is 2% or so. So there is a natural shift of talent, natural shift of capital to India and South Asia. Lot of museums are coming, Sotheby's, Christie's, and all auction houses, they have
offices in Beijing and Hong Kong and a lot of others coming to Singapore and all. ये सब कॉन्टेक्स्ट में ये एक बात है. दूसरी बात कि फ्रॉम आर्टिस्टिक क्रिएटिविटी पॉइंट ऑफ व्यू इन फ्यूचर, जैसा कि एल्विन टॉफलर who predict about future ऐसा बताते हैं कि kinetic art difference between art and entertainment, it's going to be very thin. You will not be able to decide whether this is an entertainment or this is an art. So all time-based videos, time-based lighting, time-based medium, which can function both as an art and both as an entertainment. We artists will have to create something to entertain the audience. Museum will display something which is engaging with the audience, which can give a 10-minute high to the audience, which can entertain audience for half an hour. That will be art. So that's the trend. Abhi world top museums, including Biennale and all worldwide, you will see installations where it's entertaining. It engages the audience in doing some performance, or it'll just entertain, you know. So in a way, it's a good. And बस इस दिशा में सभी को आर्टिस्ट को अब सोचना है आगे. ऐसा नहीं कि कुछ ऐसा बना दिया, ऐसा कुछ बनाए कि जिससे कि ऑडियंस कनेक्टेड फील हो, आधे घंटे उसके साथ रहना उसको अच्छा लगे, और he feel high, he feel refreshed when he go back, and he like to come back again and see it again, enjoy it again, like this. You can call it kinetic art, you can call it light installation, you can call it, but this is reality. तो फिर जो अपने यहाँ के पेंटर्स हैं, जो कैनवास पे पेंटिंग करते हैं और जो एक बहुत सुंदर आर्टवर्क बनाते हैं, उनका फ्यूचर क्या? वो तो एंटरटेन नहीं कर सकते, वो तो एंगेज कर सकते हैं. हाँ, बट तो नहीं कर सकते. हाँ, उसकी भी इम्पोर्टेंस है, but this is general trend. We have to live with it. This is a general trend, sir. Kinetic art, moving object, moving installation. This is a trend. We have to accept it like this. Okay. अभी आप तो एब्स्ट्रैक्ट आर्ट करते हैं. आपके एब्स्ट्रैक्ट आर्ट के बारे में बताइए. इसका क्या, कैसे हुआ, ये कैसे इवोल्यूशन हुआ, और आगे क्या देखते हैं आप? मेरा एब्स्ट्रैक्शन सर लाइक 25 years ago, उसके पहले I did figurative works, लेकिन the kind of joy मेरे को मिलना चाहिए, जो satisfaction मिलना चाहिए, वो figurative में उतना नहीं derive हुआ. तो gradually I shifted to abstraction, and from last 25 years I'm practicing abstraction. अब मेरी जो abstraction जो work है वो बनाने के बाद I must feel very happy. It has to give me high that yes, you have created something. वो हाई तभी मिलेगा जब कुछ ऐसा चीज बनाए जो अभी तक कोई नहीं बनाया, जो अभी तक कोई वैसी बात सोचा नहीं हो, तभी एक नॉलेजेबल आदमी को एक हाई और एक पुश मिलेगा कि यस, यू हैव डन इट. ओनली देन ही कैन कंटिन्यू. सो अपनी ये रहती है कि हाउ टू इम्प्रोवाइज, हाउ टू have a more advanced stage of abstraction, how to have a minimal, how to दूसरे शब्दों में how we can have a third generation of abstraction
what second generation masters have not touched it. ये थोड़ा छोटी मुंह भरी बात जैसी होगी सर, लेकिन कुछ तो ऐसी बात है, क्योंकि ज्ञान का कुछ अंत नहीं है सर दुनिया में। राइट, वेरी करेक्ट। ज्ञान का देयर इज नो एंड ऑफ इट। अब कोई बोलेंगे कि दो ऑब्जेक्ट है, दो ऑब्जेक्ट के बीच में क्या है, तो कोई फिजिकल जो फिजिक्स का टीचर होगा वो बोलेगा नहीं नहीं ये हवा है, कोई बोलेगा नहीं नहीं ये इसमें कुछ ये गैसेस है, कोई और भी सूक्ष्म ज्ञानी होगा वो बोलेगा नहीं नहीं ये ईथर है इसमें। लेकिन जो उसकी परफेक्ट है वो बोलते हैं कि अरे ज्ञान ठसोठस भरा हुआ है, ज्ञान पूरी स्पेस में नॉलेज इतनी ठसोठस भरी हुई। कल ही कहीं व्हाट्सएप पे सब चल रहा था कि आइजैक न्यूटन वाज क्वारंटाइन इन 15th-16th century and during this quarantine period he could see the apple falling and he could devise the whole theory of gravitation and he could write Principia book which is there in Trinity College London, the original copy. So ज्ञान तो इतनी ठसाठस भरी हुई है सर, लेकिन अपने को क्या है कि एक मेडिटेशन स्टेज में रहना है, अपनी नॉलेज को इतनी शार्प कर लेना है कि उसको हम लोग पकड़ सके। अभी अपनी इतनी डिस्टरबेंस रह रही है सर कि शरीर का तो है ही ये डिस्टरबेंस, मन भी इतनी चंचल है कि वो हमेशा हिल रही है, बुद्धि भी इतनी चंचल है, कभी ये काम करेंगे कभी ये, हर समय वो जजमेंट दे रही है, ये अच्छा ये खराब, ये अच्छा ये खराब। अहम भी हर समय एक्टिव है, हर समय थोड़ी भी उसको चोट लग गई तो तुरंत सांप की तरह खड़ा हो जाएंगे कि नहीं नहीं इससे चोट लगा है, इसको तुरंत बदला लेना है। तो ये अपने को संयम में हम लोग कर लें तो ज्ञान इतनी है कि अभी तक जैसे आइजैक न्यूटन बोले ना कि 100 मोती में से केवल 1 या 2 मोती ही लिए अभी तक, तो अभी 98 मोती लेना बाकी है। सो देयर इज ए वास्ट नॉलेज which is just waiting for us to explore and find out. And artist के लिए है कि to find out and become hero and become a great success artist. So yes. अपने को जैसे ही संयम में लाएंगे, वो संयम मेडिटेशन से आएगा, अपने को शांत करने से आएगा और अपनी बुद्धि जितनी शार्प करे, और तो ये अपने को करके और फिर अपने को बनाना है, आगे बढ़ना है। बिकॉज अभी सर अभी बनाया, अभी आर्टवर्क बनाया, लेकिन इसकी असेसमेंट अभी नहीं होगी। अभी तो खुद भी हम कह देंगे सर कि बहुत अच्छा हमने बनाया, लेकिन नहीं, हम जब दुनिया से नहीं रहेंगे, उसके 100-200 साल के बाद जो लोग आएंगे वो लोग असेसमेंट करने वाले हैं, वो रियल बोलेंगे कि ओके वाज इट टॉप आर्ट और नॉट एवरेज क्वालिटी आर्ट। सो अभी अपने बना के खुश हो जाए कि नहीं बहुत अच्छा, और टू सम एक्सटेंट आई क्रिटिसाइज द मार्केट आल्सो, बिकॉज अभी शॉर्ट टर्म एक कोई गेन जैसी चीज या शॉर्ट टर्म मार्केट बोल रहा है कि नहीं बहुत अच्छा है, आई पे दिस मच प्राइस, it is very disturbing. तो अपने को आगे का सोच के बनाना है कि ये ऑफ कोर्स अभी सर्वाइवल के लिए तो चाहिए जो भी बेसिक रिक्वायरमेंट, ह्यूमन रिक्वायरमेंट, बॉडी यहाँ सर्वाइव करेगी तभी आदमी रह सकते हैं, लेकिन आवर बैक ऑफ द माइंड इट शुड बी देयर कि ये बाद के लिए इसकी लाइफ 500 साल है। अभी कुछ भी ऐसा वैसा बना दिए, अभी अच्छा लगा, ये अच्छा है, लेकिन वो बात भूल जाएगी, समय उसको टिकने नहीं देगा। वो टिकेगी तभी जब उसमें बहुत ठोस बात होगी, बहुत ठोस बात उसमें तभी होगी जब उसमें ज्ञान होगी, और ज्ञान उसमें तभी आएगी जब अपने दिमाग में परफेक्शन रहेगा, अपने दिमाग में लबालब भरा हुआ है। सो सभी मेरे को लग रहा है कि अपने को बहुत पीसफुल करके, बहुत मेडिटेटिव स्टेट में जाके, बिकॉज एज ए आर्टिस्ट कोई चीज अपने दूसरी कुछ प्रोडक्ट बना रहे हैं, मोबाइल बना रहे हैं, टीवी बना रहे हैं, कोई भी चीज बना रहे हैं, उसकी लाइफ 10 साल है, 5 साल है, उसके बाद दूसरी प्रोडक्ट आएगी। लेकिन अपने ऐसी प्रोडक्ट बना रहे हैं सर जिसकी लाइफ 200 साल है,
जो अपनी कंट्रोल के बाहर है, अपने जब नहीं रहेंगे तब वो प्रोडक्ट रहेगा और पीपल विल इवेल्युएट। अभी अच्छा अच्छा सभी लोग बोले, लेकिन अब यही, बट दिस इज द ब्यूटी ऑफ आर्ट वर्ल्ड। अभी से 100 साल के बाद हु विल बी लाइक विंसेंट वैन गॉग, नोबडी नोस। अभी जो हो सकता है कि हाईली एवरेज आर्टिस्ट हो, बेचारा सोचता हो कि नो नो आई एम नॉट सक्सेसफुल, लेकिन हो सकता है वही स्टार है, आगे का विंसेंट वैन गॉग वही है, किसी को मालूम नहीं हो। दैट्स द ब्यूटी ऑफ इट, दैट्स द ब्यूटी, वी मस्ट चेरिश इट। बहुत आनंद आया आपसे बात करके। अब कुछ क्वेश्चंस आए हैं मेरे पास में। अजय चक्रधर जी पूछ रहे हैं, हु इंस्पायर्ड यू टू पेंट एंड व्हाई डिड यू चूज एब्स्ट्रैक्शन एज अ फॉर्म ऑफ पेंट? इट्स अ सेल्फ इंस्पायर्ड, आई विल से। खुद ही अंदर से ऐसा आया कि ये रास्ता शायद मेरे लिए ठीक है, और ये करने से क्या है कि आत्मा को शांति मिलती है, खुद को सेटिस्फैक्शन होता है कि पूरी जो लाइफ मिली है अर्थ पे रहने का 100 साल, उसको बहुत अच्छे से गुजरे, उसको ऐसे ही वैसा कुछ काम में गुजार दें तो एक लगेगा कि रह गया चीज। जो भी चीज जो दिल के एकदम प्रिय है वैसी चीज करते हुए गुजरे। अपने जो यहाँ गेस्ट तरीके हैं हम लोग, ये इसमें तो एक क्या है, कंटेनमेंट और एक खुद का सेटिस्फैक्शन, और एक खुद लगे कि हाँ अपने लिए जिया है और अपने ऐसी बात। एक मिनट, एक और क्वेश्चन है। अमरनाथ जी ने पूछा है, व्हाट अबाउट स्कूलिंग एंड नॉन स्कूलिंग पीरियड? हाँ सर, क्या क्वेश्चन सर फिर से आप समझाएंगे सर थोड़ा? व्हाट अबाउट स्कूलिंग एंड नॉन स्कूलिंग पीरियड, मतलब आर्ट के अंदर एजुकेशन लिया हुआ आर्टिस्ट एंड सेल्फ लर्न्ड आर्टिस्ट, सेल्फ टॉट आर्टिस्ट, उसमें क्या फर्क है या क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल सर, लाइक आई एम सेल्फ टॉट एंड खुद ही अपनी कोशिश कर करके सभी मीडियम को सीखना। एक्चुअली सर आर्ट मेरे हिसाब से आर्ट में वही लोग हैं जिसके ऊपर गॉड की ब्लेसिंग है और माँ सरस्वती का आशीर्वाद है। क्योंकि ये ओके, नो डाउट स्कूल में, आर्ट स्कूल में पढ़ाएंगे, लेकिन वो केवल डिसिप्लिन सिखाएंगे, वो केवल मीडियम के बारे में बताएंगे, ऑप्शंस बताएंगे कि आप ये कर सकते, ये कर सकते, लेकिन वो आर्टिस्ट तो नहीं उतना बना पाएगा, वो उसके लिए रास्ते खोल लेगा। आर्टिस्ट तो खुद ही बनना है और उसमें माँ सरस्वती का आशीर्वाद लेकर आना है, क्योंकि ये सभी ज्ञान का विषय है। और ये ज्ञान सर मेरे को लगता है ऐसी है कि ब्लेसिंग चाहिए सर इसके लिए, ऊपर वाले की, गॉड के सामने हाथ फैलाना पड़ेगा कि मेरे को कुछ देना तुम, क्योंकि खुद ले नहीं सकते ये चीज। कोई कितनी भी कोशिश करे कि हम ये सीख लें, लेकिन ऊपर वाला सरस्वती माँ का नहीं है हाथ तो नहीं मिलेगा। अगर उनका हाथ है तो नहीं भी चाहते हुए कोई भी लाइन खींचेंगे तो वो गोल्ड का हो जाएगा। तो it's a God gifted, it's a cream de la cream work of humanity, of a human brain। और ये चीज कहीं न कहीं उसकी मर्जी से चलती है, मेरे को ऐसा लगता है, उसकी आशीर्वाद से चलती है। एकदम सही है, अपने हाथ में तो है नहीं सर बहुत कुछ। एक और क्वेश्चन है, ये कोई किशोरी सिंह है। There are many artists who are unable to explain their artwork when it comes to abstraction. Some give excuse that you can connect and relate with your own ideology and perception. Some state that they do not write well. It's a wise thing that if you know something about
you are capable enough to explain it. आपका क्या सोचना है इस बारे में? जैसे मोस्टली आर्टिस्ट जो हैं या स्पेशली एब्स्ट्रैक्ट आर्टिस्ट, वो अपनी पेंटिंग को या तो एक्सप्लेन नहीं करना चाहते या नहीं कर पाते. किशोरी जी का कहना है कि अगर आपने पेंटिंग बनाई है तो उसके पीछे कोई ना कोई थॉट प्रोसेस तो है, और वो थॉट प्रोसेस आर्टिस्ट या तो क्यों नहीं बताना चाहता या क्यों नहीं बताता. इसमें सर कोई भी वर्क ऑफ आर्ट है सर, इट इज मिक्सचर ऑफ लॉट ऑफ थिंग्स. उसकी स्किल, उसकी इमोशंस, उसकी पास्ट लाइफ की प्लस एंड माइनसेस, अटैचमेंट्स, राइट, प्लस एक्सीडेंट, प्लस वो मोमेंट में क्या उसकी ब्रेन में चल रही. सो देयर आर हंड्रेड्स ऑफ फैक्टर्स गोइंग इनटू क्रिएटिंग एन आर्ट वर्क. अब इसमें एक चीज सीधे शब्दों में सर कहें कि कोई भी कला बुद्धि का विषय नहीं है, इसको बुद्धि से नहीं समझ सकते. अच्छा, बुद्धि से उसको नहीं समझ सकते. दूसरी चीज, इसको शब्द में व्यक्त नहीं कर सकते, ये शब्द की पकड़ से बाहर है. इसको शब्द में लिख सकते हैं इसके बारे में कि ये इस कलर का है, ऐसा है, देखने में सुंदर लगता है. जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई आपको ठंडा एक गिलास पानी दे, उसको आप पी लिए, उसको शब्द में व्यक्त करना मुश्किल है. उसके बारे में लिख सकते हैं कि हाँ वो देखने में ठंडा है, ऐसा है, लेकिन जो प्यासा आदमी पी लेता है उसको व्यक्त नहीं, उसको पी के ही देखना पड़ेगा कि कैसा लगता है पीने में. जैसे फॉर एग्जाम्पल नींद है सर, स्लीप. अब स्लीप को समझाए कि कैसा है, उसके बारे में लिखे, उसको एक्सप्लेन कभी नहीं हो सकती अनलेस कि वो आदमी खुद सो के देख ले, नींद में जाके देख ले कि कैसा लगता है, तो वो बोलेगा नहीं नहीं बहुत अच्छा लगता है, बहुत आराम लग रहा है. वैसे ही ये कला है सर, ये शब्द की सीमा से बाहर है और ज्ञान से इसको नहीं समझ सकते. इसको सिंबॉलिक ये है इसकी मीनिंग. कोई भी कला की थोड़ी थोड़ी उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं लेकिन 100% नहीं. और ये कला की सबसे सुंदर बात ये है कि जो दूसरी जितनी विज्ञान है सर, सभी विज्ञान अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल केमिस्ट्री है तो उसका बहुत सारा ब्रांचेज होगा जो अलग अलग दिशा में जा रहा है, बायोकेमिस्ट्री, ये केमिस्ट्री. लेकिन कला ही अकेला है जो सबको एक में मिलाने की कोशिश में रहता है और करता है. इट यूनिफाइज ऑल नॉलेज ऑन द यूनिवर्स, इट ट्राइज. और तो इसलिए ये इंटरेस्टिंग है. और ये लेकिन इसको पूरी कोई एक्सप्लेन नहीं, खुद आर्टिस्ट भी नहीं कर पाएगा. जैसे फॉर एग्जांपल एब्स्ट्रैक्ट आर्टिस्ट तो कर ही नहीं पाएगा, और खुद जो एक कला बनाया एब्स्ट्रैक्ट आर्टिस्ट वो दोबारा उससे खुद बनेगा भी नहीं, और वो खुद भूल भी जाता है कि हम ये क्या थे, इसमें कितने लेयर दिए थे. बिकॉज उसमें एक्सीडेंट है, चांस है, उसकी मूड है, उसकी टाइमिंग है, उसकी टाइमिंग में उस समय क्या क्लिक किया, इसको विज्ञान से नहीं समझ सकते, विज्ञान से नहीं समझ सकते. सही बात है. एक और क्वेश्चन, अपन लास्ट क्वेश्चन लेंगे सर. In the previous talk we had with Honorable Sir Prabhakar Kolteji, he stated that one who can pursue realistic art can only do its abstraction. Do you think many artists pursue abstraction art considering it as an escape to call oneself an artist or give a statement of enjoyment और एन आर्ट थेरेपी? एक तो चीज ये सर मेरे एक्सपीरियंस से कि जो भी एब्स्ट्रैक्शन करने से पहले बहुत रियाज चाहिए और बहुत प्रैक्टिस चाहिए. फिगरेटिव की बहुत प्रैक्टिस चाहिए, मीडियम के ऊपर बहुत कमांड चाहिए, फॉर्म जो भी चीज है सभी चीज के ऊपर बहुत परफेक्ट कमांड चाहिए, तभी वन कैन रियली प्ले विथ एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज. ये पिनाकल है, ये फाइनल स्टेज है क्रिएशन का. इसके आगे कुछ है नहीं, इसके आगे सीधे ब्लैंक कैनवास है. इसके ये एकदम कटिंग एज पे काम कर.
कोई सीधा ही हम्म। वहां नहीं आ सकता। कोई भी आर्टिस्ट को बहुत रियाज चाहिए, रियाज फिगरेटिव में करना पड़ेगा और बहुत मेहनत करना पड़ेगा। तो उसके बाद भी चांसेस नहीं है कि ही विल हैव अ कमांड टू मेक एब्स्ट्रैक्शन। उसके बाद ऊपर वाले की आशीर्वाद और उसकी लक भी चाहिए, तभी वो उसमें ग्रेजुएट हो सकते हैं। क्योंकि इसमें सभी चीज का, बहुत चीज का, उसकी पूरी नॉलेज, उसकी डायमेंशन, दुनिया की समझ, परफेक्शन। एक्रेलिक में काम करते हैं तो वो कलर की मीडियम की उसकी पूरी पकड़, उसकी डायमेंशन की पकड़, अभी की दुनिया में एब्स्ट्रैक्ट प्रैक्टिसेस कैसा चल रहा है उसकी समझ, अभी दुनिया की समझ, दुनिया में टेक्नोलॉजी कैसी है, हम कहाँ एग्जिस्ट कर रहे हैं दुनिया में, मेरी लाइफ स्पैन कितनी है। ऐसा तो नहीं कि ऐसे आइडियाज लेके आए जिसकी 200 साल में मैच्योर होगा। भाई अपनी लाइफ 100 साल की है, मैक्सिमम 50-60 साल मिलता है काम करने के। तो आइडियाज उसके सूट होना चाहिए कि 60 साल के अंदर ही वो मैच्योर हो जाए, तभी वो, नहीं तो वो अधूरा ही कम्युनिकेट करके यहाँ से जाना पड़ेगा। फिर उसको he'll have something unfinished, so he'll have to reborn and restart again. So that's philosophical question. हम लोग को ये लाइफ मिला है कि जो भी चीज करें उसके बाद करके उसको कंप्लीट करें, ताकि यहाँ से जब जाए तो कोई चीज अधूरा नहीं रहे। अधूरा रखेंगे तो फिर ये जीवन मरण में फिर फंस जाएंगे। ये इट्स ए विंडो आल्सो फॉर एग्जिट from the chain of life and birth. That is our larger goal. That also, I mean, all thing has to be looked into. It's not only one aspect, all interconnected. तो आपका मानना ये पक्का है कि कोई भी इंसान अगर एब्स्ट्रैक्ट आर्ट करता है तो उसके पीछे या उसके पहले उसने रियलिस्टिक आर्ट पे या बहुत याद चाहिए, बहुत दूसरी आर्ट फॉर्म्स के ऊपर काफी कुछ काम पहले किया है, उसके बाद में ही वो एब्स्ट्रैक्शन में जा सकता है। बहुत 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 I'll say lot of lot. और आप और कुछ इसके अलावा जो अपनी वार्तालाप हुआ उसके अलावा और कुछ आप अपने श्रोताओं को कहना चाहेंगे? नहीं, लॉट ऑफ लव टू यंग आर्टिस्ट और सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अभी लॉकडाउन के समय में ये डिफिकल्ट टाइम है, अभी कैसे भी करके ये पूरी डिफिकल्ट टाइम ये साल निकल जाए और सभी सीनियर लोग सभी बैठे हुए हैं सभी को हेल्प करने के लिए। किसी को कोई भी ऐसी है तो हम लोग खड़े ही हैं और कैसे भी ये डिफिकल्ट टाइम, ये पैंडेमिक का टाइम निकाल दें, उसके बाद बहुत अच्छा है और बहुत ही ग्रोथ की है बात, बहुत ही आगे बढ़ेंगे सभी लोग। ऐसा शुभकामनाएं हैं सभी के लिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस प्रोग्राम में आने के लिए एंड हमारे श्रोताओं की तरफ से भी और हमारी तरफ से भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू सर।